worked in automotive designing area for around 1.5 years or around 2 years maybe, and then shifted to IT field. So it was IT support for automotive industry. So for designing and manufacturing field, they use the IT software solution. So I had to support or lead those developments, IT developments at the automotive area, and that was until 2009 in automotive industry. Then I switched to Intergraph Japan. Currently, I'm working with Intergraph Japan, and that is for now IT solutions for the shipbuilding industry, not in automotive, but now shipbuilding industry. So while working at Intergraph, I got an opportunity to go for my PhD in Kyushu University here in Japan. Started my PhD in 2010, and it has gone well. And now I'm supposed to get my doctorate degree on 25th of this month. About the social achievements, as described, I'm working with AIM Group since 1998. Here in also Japan, we have AIM members, AIM Japan members. So we do meetings regularly and on some projects. And during this career, I was able to settle down my younger brother who did his graduation arts in Nagpur, and with additional technological skills, he could be settled down in Japan since 2006. After he came here with additional relationships here in Japan, we could able to process visa for 2 engineers from Nagpur, and they are now working in Japan. It was quite difficult, but we could able to process visa for them. We got them business visa in the beginning for 3 months, and then change it to working visa for 4 months. So they are now working in Japan. And also, with like Prashant could bring his sister-in-law here in Japan, and also some of the members could also bring their relatives. So that's how we are increasing the strength, our strength in overseas. And since 2010, I have started the franchise of British International School. Hopefully, everybody might have heard about it. So since then, now today we have third grade from nursery to third grade running in my branch in Nagpur, and we have almost 140 students studying over there. And next year from June we will be starting the fourth grade out. And currently, that was the first branch in Nagpur, but now there are 8 branches already running in Nagpur. And now in Maharashtra state there is around 50 to 60 branches running. I don't have exact number, but around that branches are running in Maharashtra state now. So that is all about my background, and now I think we should return to the opportunities in Japan. First of all, I will talk about the higher education. How we can go for higher education in Japan. I will explain about bachelor degree, master's degree, and PhD. So in terms of education, well, I think first of all everyone would have a question that whether a language is a barrier or not, right? So let me first of all answer that question. Absolutely not. In studies here in universities, topmost universities, they do have English education. So it is not mandatory that you should have Japanese language skills, written, writing, or speaking. But you can take admissions and you will have specifically English course for yourself for whatever course you go for. अच्छा, there is a request to speak in Hindi, तो ठीक है मैं अभी हिंदी में बात करूँगा आपसे. So मैं अभी बता रहा था कि जापान में सबसे पहले सबको ये क्वेश्चन होगा कि वेदर जापानीज लैंग्वेज पढ़ना नेसेसरी है कि नहीं है, राइट? तो उसका आंसर है डेफिनेटली नहीं, जापानीज लैंग्वेज नेसेसरी नहीं है. यू कैन ज्वाइन द कोर्सेज इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में भी ज्वाइन कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की कोर्सेज अवेलेबल है, सो यू कैन गो फॉर इंग्लिश कोर्सेज. और बाद में ठीक है, लैंग्वेज के अलावा इवन इफ यू गेट एडमिशन इन इंग्लिश कोर्सेज, यू शुड नो कि
okay, how are the courses over here, how long it takes, and how we can get the admission. About courses, there are undergraduate course, you can go for bachelor degree, masters, and also PhD. बैचलर कोर्स इज फॉर 3 years, आप 3 साल के लिए बैचलर डिग्री में जा सकते हो. मास्टर्स 2 years, एवरीवेयर इज सेम, इवन इन इंडिया, यूएस. सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ऐसा है कि पीएचडी यहाँ पे 3 साल में होती है, सबसे कम पीरियड मेरे ख्याल से वर्ल्ड में. आई गेस अमेरिका में भी 5 साल का कोर्स है, इंडिया में भी 5 साल का कोर्स है, बट जापान में पीएचडी 3 साल में की जा सकती है. तो इन माई केस ऑल्सो, मैं 2010 में मेरा पीएचडी चालू हुआ था, और ग्रेजुएशन 2013 में ऑलरेडी हो गया. बट इनोवेशन या जर्नल्स पब्लिकेशन न होने की वजह से डॉक्टर डिग्री तो अभी तक मिली नहीं थी, बट नाउ इट इज ऑल क्लियर. एंड यू गेट एक्सटेंशन ऑफ 2 to 3 years. लाइक इफ यू कंप्लीट पीएचडी का आपका ड्यूरेशन खत्म होने के बाद में आपको 3 साल का या मैक्सिमम, आई डोंट हैव एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, बट 3 से 5 साल का समय आपको दिया जाता है, सो दैट यू कैन फिनिश योर जर्नल पब्लिकेशन. फिर बाद में क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल सपोर्ट. जो लोग फाइनेंशियली वीक है उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट है कि नहीं है जापान में? डेफिनेटली है. स्कॉलरशिप स्कीम्स है जापानीज गवर्नमेंट की, जिसकी लिंक यहाँ पे मैंने दी है. मैं ये प्रेजेंटेशन जो है गूगल ड्राइव में कॉपी कर रहा हूँ, तो जिन्हें भी इसका एक्सेस चाहिए वो मुझे ईमेल करे. आई कैन गिव यू द एक्सेस, so that you will have all this information with all the links and you can go through it. तो फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप स्कीम में ये अगर वेब पे आप क्लिक करते हो तो यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ यू कैन गेट द स्कॉलरशिप. यहाँ पे दिया है जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, राइट. तो आप इसे क्लिक करिए, तो आपको यहाँ पे हर फील्ड के रिलेटेड ना, आप रिसर्च में जाना चाहते हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जाना चाहते हो, कि टेक्नोलॉजी हायर फायर टेक्नोलॉजी स्टूडेंट करके जाना चाहिए आपको, जो भी आपका फील्ड है उसके हिसाब से यहाँ पे दी है कि स्कॉलरशिप कितनी दी जाती है इस स्कॉलरशिप स्कीम में, एप्लीकेशन पीरियड क्या होता है, और बात ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन गो इनसाइड दैट, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. तो ये तो एक पेज मैंने आपको सैंपल के तौर पे दिखाया है, लेकिन देर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप, नॉट ओनली दिस, यू कैन ऑल्सो, आप गूगल सर्च करिए, जिससे आपको और ज़्यादा साइट्स मिल सकती है जिसमें इसके अलावा भी स्कॉलरशिप स्कीम्स होगी गवर्नमेंट की. तो इसके लिए कुछ शायद एग्जाम होगी. यू हैव टू गो टू दैट डॉक्यूमेंट गिवन इन द वेबसाइट, उसे रीड करिए, और अगर एग्जाम है तो उसे अपेयर करिए, और आफ्टर क्लियर, इफ क्लियर द एग्जाम एंड यू गेट सिलेक्टेड, यू कैन गेट द स्कॉलरशिप. जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अलावा देर इज वन मोर स्कॉलरशिप विच इज यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक. मीन्स अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो जो भी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे उसके वेबसाइट में जाइए, वो वेबसाइट में आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप मिलेगी, जो इसके अलावा डिफरेंट है. जापानीज गवर्नमेंट स्कीम्स के अलावा डिफरेंट स्कॉलरशिप है, तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं. जैसे कि अभी एक मैं एग्जांपल के तौर पे कृषि यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पेज ओपन कर रहा हूँ. तो मे बी, लेट मी सी, इट्स नॉट वर्किंग. ओके, ये तो ये जो है कृषि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट ऑफ, ये डिटेल्स है, लास्ट ईयर का है, जुलाई 5, 2013 का. ऐसे ही वेबसाइट में 2014 के लिए भी होगा, और हर साल वो डिस्प्ले करेंगे. ये पेज आप रेफर करिए, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी है कि स्कॉलरशिप किस तरीके से मिलती है, किसे कॉन्टैक्ट करना है. सो इफ यू कॉन्टैक्ट फॉर एग्जाम्पल दिस ईमेल एड्रेस, दे विल प्रोवाइड यू ऑल डिटेल्स अबाउट हाउ टू गेट दिस स्कॉलरशिप. ओके, तो बेसिकली आप यूनिवर्सिटी के मेन पेज पे जाने के बाद में आपको लिंक्स मिलेगी अलग अलग, स्कॉलरशिप्स कहाँ है, कैसे है, एडमिशन कैसे होता है, सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में दी हुई है. हो सकता है आपको पहले जापानीज पेज आए व्हेन यू ट्राई टू ब्राउज, गूगल सर्च करने के बाद, बट हर यूनिवर्सिटी के वेब पेज पे वहाँ पे इंग्लिश टैब होता है, सो गो टू इंग्लिश पेज, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. ओके,
इसके अलावा और एक स्कॉलरशिप स्कीम्स होती है जो प्रोफेसर का रिसर्च फंड होता है। यहाँ पे या फिर इवन अमेरिका में भी, इंडिया में भी होगा। जो भी एसोसिएट प्रोफेसर्स है या प्रोफेसर्स है उनके लिए एक पर्टिकुलर रिसर्च फंड उनका होता है, हर साल में कुछ बजट होता है। तो प्रोफेसर्स अपने खुद के बजट में से भी स्कॉलरशिप इनको दे सकते हैं, रिसर्चर्स को। बट दिस इज बेसिकली मे बी BS और MS प्रोग्राम के लिए नहीं होगा, बट ओनली फॉर PhD इट इज गारंटेड कि दे कैन प्रोवाइड यू सम असिस्टेंट और सम फंड स्कॉलरशिप फॉर योर ग्रेजुएशन। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, वेबसाइट दी है मैंने, ये वेबसाइट में दिया गया है कि हाउ द प्रोफेसर्स हैव दैट रिसर्च फंड अवेलेबल। आप भी ये वेबसाइट भी रेफर कर सकते हो। यहाँ पे सब क्लियरली दिया हुआ है कि अ, कितना उनका बजट होता है, कौन से ऑल ओवर जापान की वेबसाइट है ये तो। बट you may not get detailed information about what is the budget for each individual professor or each particular university. So for that, once you contact them and start a communication, you will get all those details. So I'm just giving you some references which help you to know or understand about the scholarship. ठीक है। Now about academic session opening ceremony कब होता है यहाँ जापान में? जनरली अप्रैल और अक्टूबर से 2 सेशंस होते हैं, स्टार्टिंग सेशन। April is and October, these 2 sessions are only for PhD courses. But for bachelor and masters, they don't have two kind of sessions. They only have admissions in April. Sorry, not admission. It's, session starts in April. So admission starts around, process starts around 3, 4, or 6 to 8 months prior to the duration or starting the session. So if you are planning for next year, you should start around October or September, October. You should start browsing for the information or prepare yourself, and then you can get more information from the website. अभी क्वेश्चन ये है कि ठीक है, अगर हमें हायर कोर्स के लिए, एजुकेशन के लिए जापान में आना है तो उसके लिए स्टेप्स क्या है? हाउ शुड आई गेट टू जापान, हाउ शुड आई स्टार्ट? सो मैं अभी उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। आपको सबसे पहले तो ये स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन जो होता है गवर्नमेंट का, जापानीज गवर्नमेंट का, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यू शुड ट्राई टू प्रिपेयर एंड अपियर फॉर दैट एग्जामिनेशन। ठीक है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि आप उसमें सक्सेस होगे ही, और सक्सेस नहीं भी हो तो भी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इतना है कि व्हेन यू ट्राई टू अप्रोच सम प्रोफेसर और ट्राई टू डील विद सम यूनिवर्सिटीज, आपके पास कुछ तो ऐसा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो यू शुड टेल देम कि यू आर ट्राइंग हार्ड फॉर गेटिंग एजुकेशन इन जापान। तो इवन दो यू कुड नॉट सक्सेस इन गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम जापानीज गवर्नमेंट, अगर आपको इसमें सक्सेस नहीं भी मिलता है तो एटलीस्ट यू कैन टेल दैट कि यू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, आपने एग्जाम को अपेयर किया है बट यू कुड नॉट गेट सक्सेस, so you will have some story to tell, so let's prepare and appear for the exam. तो उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया है कि जापानीज लैंग्वेज नेसेसरी तो नहीं है, बट इफ यू कैन टेल देम कि you know some जापानीज लैंग्वेज, you can speak something, maybe you cannot write or read, बट अगर आप उनको बता सकते हो कि आपने कुछ कोर्सेज किए हैं जापानीज लैंग्वेज के, आपने जापानीज लैंग्वेज का कल्चर फॉर स्टडी किया है इंडिया में, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आपको टाइम मिलता है, इफ यू हैव इनफ टाइम, डेफिनेटली आप जापानीज लैंग्वेज स्टडी के कोर्सेज वहाँ पे ज्वाइन करिए इंडिया में। अपने यहाँ पे बहुत सी जगह पे कोर्सेज है, दिल्ली में है, मुंबई में है, पुणे में है, नागपुर में भी है। नागपुर में आई नो 2 इंस्टीट्यूट्स, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में तो मुझे बोलिए। वैसे मेरे ख्याल से वेबसाइट में भी आप गूगल सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पे मुंबई के लिए सीएनसी एकेडमी, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है मुंबई पुणे में। तो आप डेफिनेटली अगर टाइम मिलता है तो उसे ज्वाइन करिए। यू मे हाउ टू पे सम कोर्स फीस फॉर दैट। तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अच्छा ही है, एंड इफ यू कैन नॉट इन्वेस्ट यू कैन रिक्वेस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर AIM और एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अस, वेयर वी आर वर्किंग। तो केस टू केस बेस पे हम लोग रिव्यू करके अप्रूवल दे सकते हैं किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो, लैंग्वेज के लिए भी। उसके लिए वेबसाइट पे एक एप्लीकेशन फॉर्म है, या फिर मुझे बोलिए, हम लोग आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करके भेजना पड़ेगा।
So we can try to help you for Japanese language studies also. जस्ट इन केस बाय केस बेस पे अगर AIM और ANA आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाए तो हमारे पास में नागपुर में मेरे पास में कुछ स्टडी मटेरियल है, जापानीज लैंग्वेज के बुक है मेरे पास में। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको बुक्स दे सकता हूँ, लेकिन आपको उसका एक कॉपी बनाना पड़ेगा एंड कीप इट टू योरसेल्फ एंड यू हैव टू रिटर्न दैट ओरिजिनल टू मी सो दैट वी कैन हेल्प टू मोर पीपल। ठीक है, तो उसकी आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। वैसे मटेरियल ऐसा है कि यू कैन स्टडी बाय योरसेल्फ ऑल्सो, और ऑनलाइन पे भी कुछ मटेरियल अवेलेबल है, लिंक अवेलेबल है। They can teach you how to pronounce and all that. So it will be little difficult, but you can still do that. ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि ठीक है, आपने एग्जाम के लिए अपेयर किया, एग्जाम आपने स्कॉलरशिप की प्रिपेयर की, अपेयर किया, जापानीज लैंग्वेज की स्टडी आप कर रहे हो, तो पैरेलली यू कैन आल्सो गो फॉर वर्किंग यूनिवर्सिटी इन जापान। ठीक है, तो जापान में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपको मतलब आपने रेफर करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के नाम जनरली तो सिटी के नाम से होते हैं, जैसे टोक्यो यूनिवर्सिटी है, ओसाका यूनिवर्सिटी है, किशु यूनिवर्सिटी है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग को तो सिटीज के नाम भी नहीं मालूम, तो जो सिंपल है, आप गूगल ड्राइव पे जाइए, गूगल मैप पे जाइए, और उसके जूम के हिसाब से आपको जितना कम जूम करोगे तो आपको सिटीज के नाम सारे दिखाई देंगे। तो यू कैन हैव लाइक टोक्यो इज द नेम ऑफ द सिटी, नागोया, गिफु, ओकायामा, फुकुओका, ऑल दीज आर सिटी नेम। So if you try to search for, or you can also search in Google, list of universities in Japan, so you'll get all the list. ठीक है, उसके बाद में टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज कौन से है जापान में, तो सिंपली वेबसाइट में अवेलेबल है ऑलरेडी। दीज आर द लिस्ट ऑफ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज। फर्स्ट रैंक इज यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, देन सेकंड रैंक इज क्योटो यूनिवर्सिटी। so you will know the top 30 university names over here। तो आपको जब यूनिवर्सिटी चॉइस करना है तो इंडिपेंडेंट ऑफ सक्सेस ऑफ फेलियर इन द स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, स्कॉलरशिप एग्जाम पे आपको सक्सेस होता है कि फेलियर होता है, उसको छोड़ के स्टिल यू गो फॉर सिलेक्शन ऑफ 6 यूनिवर्सिटीज एट लीस्ट, मिनिमम select 2 top rank universities, 2 medium level, and 2 maybe in between middle and top. So you can go for selection of 6 universities, जैसे कि टोक्यो यूनिवर्सिटी है, किशु यूनिवर्सिटी है। एंड when you try to browse university pages, for example, if you go to this page, you will get all guidelines, animated guidelines kind of, information available here. Here is, for example, you can see the animated information. It gives you, question answers, and it takes you to different places. It's very easy. You just have to click on this. It will tell you the information how to go ahead. So just try to browse the information online. So now you have selected 6 universities, right? So out of the 6 universities, now you have to select the department. Okay. So you go to each university home pages, try to see name of departments. For example, with each university, you will find list of departments like this. There are faculty of humanities, faculty of economics, faculty of science, graduate school of humanities. So you have all these information available. Engineering, chemistry, science, everything is there. And you can also see the list of professors within that particular department. ठीक है, तो आपने अभी यूनिवर्सिटी चॉइस कर लिए है, आपने डिपार्टमेंट चॉइस कर लिया है। नेक्स्ट लेवल इज टू सिलेक्ट द प्रोफेसर। प्रोफेसर इन द सेंस, सी इफ यू आर गोइंग फॉर स्कॉलरशिप एग्जाम, आपने अगर स्कॉलरशिप एग्जाम अपेयर कर लिए, आपको उसमें सक्सेस मिलता है, तो इट मे नॉट बी नेसेसरी कि आपको कौन से प्रोफेसर से डील करना है वगैरह वगैरह। सिंस यू ऑलरेडी get scholarship, success, you can just apply for the admission, and in the department whatever they will have entrance schedule, तो आप उसे चेक करके एग्जाम अपेयर करिए, based on that you can get the admission. But just in case अगर आपको गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप एग्जाम में अपेयर किए, आपको सक्सेस नहीं मिला है, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप एग्जाम में आपको अपेयर किया लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिलता है, then the last choice will be to deal with professors. Talk to them and show your interest to them. You are interested to go for studies in under his guidance,
in his university, in his department. So you have to choose who are the professors that may help you. तो उनके भी वेबसाइट में जाइए और इच पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स होते हैं इस तरह से, तो आप उसमें उनके प्रोफाइल चेक करिए, उनके नाम पे क्लिक करोगे तो आपको उनका डिटेल प्रोफाइल मिलेगा हर प्रोफेसर्स का। तो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि वो किस फील्ड में उन्होंने रिसर्च किया है, उनका स्किल्स कैसा ऐसा है, क्या क्या रिसर्च वो कर रहे हैं। तो ये सारा आप उसमें स्टडी कर सकते हो। उसके हिसाब से आप अपना जो आपका जो गाइड है आपको रखना है, जिसके अंडर में आपको रिसर्च करना है या मास्टर्स करना है, तो आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं। Then, so you have decided your university, you have decided your department, you have decided the professor that who can guide you, your research guide. Then you first of all study his detailed profile, what is his background, what kind of research he's doing from his own page. Then you will come to know, okay, this is the professor that you can go for. Next step would be look for the advisor who can introduce you to the selected professor. तो प्रोफेसर सेलेक्ट करने के बाद में वैसे तो आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज गुड कि आपके और प्रोफेसर के बीच में ऐसा कोई मीडिएटर है हु कैन एडवाइस और हु कैन रिक्वेस्ट प्रोफेसर टू हेल्प यू टू फॉर द रिसर्च। तो इंट्रोडक्शन अगर मिलता है तो बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि समझो फॉर एग्जांपल आई हैव माय प्रोफेसर गाइड, इफ आई टेल हिम कि नहीं मैं within in my same research he can some candidate can continue studying in his department under his guidance, he will easily take it and he will support us or ask us for more students, so it will be very easy to go for that. तो ट्राई कीजिए कि कोई एडवाइजर आपको मिलता है who can provide a letter of support for the proposal so that he can work with that professor and help you to get that. उसके बाद में ठीक है, आपको एडवाइजर मिल गया, आप ही कैन सबमिट द लेटर, और इवन इफ यू डोंट गेट द एडवाइजर यू कैन राइट द लेटर बाय योरसेल्फ। सो यू कैन गो अहेड एंड ड्राफ्ट योर ईमेल टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपका इंट्रोडक्शन टाइप करिए, उसके बाद में लेटर में आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए कि आपको हायर स्टडीज करना है, और particularly why you have selected that professor, that university, that department, you can mention that. And since it is Japan, you can also mention ki you have interest in Japanese culture, and since everybody knows that Japanese is a Buddhist country, so you can also explain a little bit more about Buddhism. You can also convey that you are a Buddhist candidate, मैं जब इंडिया का ओरिजिनल बुद्धिस्ट हूँ, आप बता सकते हैं, so they will be impressed, they will be more impressed and they may show interest in that. But keep in mind ki in the first email content you should not state anything about financial aid. Don't show that ki you need financial aid, and don't make too much of polishing to him so that he is not diverted, he shows you interest. And keep the letter as professional as possible and also diplomatic, of course, and show the interest in Japanese culture, high technology and Buddhist principles. Okay, that is very important. आपने मेल ड्राफ्ट करने के बाद में इमीडिएटली सेंड मत करिए, उसको पहले किसी अच्छे प्रोफेशनल से रिव्यू कराइए कि कंटेंट्स ठीक है क्या, कुछ मिस्टेक्स है क्या, और हो सके तो इंग्लिश स्पीकिंग कोच से भी आप उसको रिव्यू करके लीजिए, सो दैट कि लिमिटेड और अच्छा लगे और इट इज इम्प्रेसिव. ओके, यू शुड नॉट गो इनटू wrong direction, so let us try to give some time to review that by someone. So if everything goes good and आपका मेल ड्राफ्ट फाइनल हो गया है, तो then you can start your communication and make sure that कि आप जब भी मेल लिखते हो, पहला मेल इंट्रोड्यूस करते हो, तो सबसे पहले तो आपका स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि you have to show that कि you have already applied for the scholarship examination and what was the status, whether it is success or failure doesn't matter, but you just tell him you have applied for it. Then and another important point is that अगर आप मेल कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो तो depends professor to professor how long he will take to reply you, but from our side हमें केयरफुल रहना चाहिए कि अगर हमें रिप्लाई आता है
तो हम उसको रिप्लाई इमीडिएटली हो सके तो मैक्सिमम दो दिन के अंदर विद इन 2 days वी आर रिप्लाइंग टू द प्रोफेसर। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करिए, 1 हफ्ता वगैरह मत रुकिए, उससे क्या हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट कम हो जाए। तो immediately आप try to respond him, but again while replying you have to be very careful in your language। आपका लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, आप प्रोफेशनल होनी चाहिए और कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और उसको रिव्यू करिए फिर से एक बार भेजने के पहले एंड ट्राई टू सेंड इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, एंड हो सकता है कि जापान के प्रोफेसर जो है, ठीक है, बहुत सारे प्रोफेसर इंग्लिश बोलते ही है, बट कुछ प्रोफेसर से उनका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं होगा, तो हो सकता है उनका ईमेल भी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें कैसे भी लिखना है। सो यू कैन ट्राई टू रिव्यू प्रोफाइल, मे बी प्रोफाइल में से पता ना चले, बट फिर भी कीप इन माइंड कि हो सकता है उनकी इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम हो, तो स्टिल you deal with him like a professional guy, so that it impressed you। Okay, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में हो सके तो ट्राई टू डील विद दिस एट द एंड व्हेन यू थिंक दैट कि प्रोफेसर हैड रिव्यूड योर रिक्वेस्ट, आपके बारे में उन्होंने स्टडी किया है, ही रिप्लाई टू यू समटाइम्स, ही आस्क यू सम क्वेश्चन, आपने उसका रिप्लाई किया है एंड ही सेटिस्फाइड विद व्हाट एवर यू आर सेइंग एंड ही इज नाउ रेडी। और देन ओनली तभी आप ट्राई कीजिए कि यू टेल हिम कि ठीक है, I can go for studies, but there is a problem that I cannot bear the cost, the fees that may require। So would there be any possibility of financial help from either his research fund or whatever way? Okay, so then maybe he can come up with additional input to you. And so some known professors that I can help you to introduce, these are the 2 professors that I know, 3 professors I know। One from the marine systems engineering from Kyushu University, where I did my PhD। So these 2 professors can help you to get the admission. Though it is marine systems engineering, of course for maritime students, master degree students, it will be very good to go for marine systems engineering। But since even I am from mechanical background, but I went to this department, my research was basically only for the IT field, okay, IT support, IT solution। So even IT engineers can go for this department, and I can give them the project and next level of research information, that where which area they can go for research। So I can introduce you to these 2 professors। One more professor is Mr. Yamamoto from Kyushu Technological University, which is called QTech University। In that university, this is the mechanical systems engineering department, but this professor is mainly involved in the robotics engineering। So you can also get admission for robotics department, robotics engineering research group। I can introduce you to these 2 professors, and there are more members from Japan। They might have relationship with other professors, so they may also introduce you to some professors if required, and we can update that information later on। Just contact me on that, we will try to explore। That is all about the higher education। Okay, so next we have to go for employment opportunities, but I think before we go for that, we can have question answer on the education front। We can clarify that and then we can move on to employment। What do you think? हाँ, इस टॉपिक के ऊपर किसको क्वेश्चन है? Modern college so audio नसेल तर they can write the question answers in your chat also। मी त्यांना अनम्यूट केलं आहे, ते विचारू शकतात। मॉडर्न
looks like Madam College is speaking, but we cannot hear them. म्हणजे बोलत आवाज नाही येत तुमच्याकडे बोलते. तुम्ही क्वेश्चन पण टाईप करू शकता चॅट बॉक्स मध्ये किंवा तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करा आणि प्रश्न विचारा. तुम्ही प्रश्न 3-4 लँग्वेज मध्ये पण विचारू शकता. जॅपनीज बोलणारे पण लोक आहेत. जापानीज, मराठी, हिंदी, इंग्लिश 4 लैंग्वेज में है. 4 लँग्वेज मध्ये प्रश्न. Yeah. अगेन स्टुडंट जे पण तिथे आता आपल्या कॉलवर आहेत, फक्त तुम्ही अमेरिकेची अपॉर्च्युनिटी नका बघू. अपॉर्च्युनिटी खूप ठिकाणी आहेत. UK मध्ये आहेत, जपान मध्ये आहेत, सिंगापूर मध्ये आहेत, अजून आफ्रिकन कंट्री मध्ये आहेत. तिकडून पण आपण अमेरिकेला येऊ शकतो. Yes. आणि अजून एक महत्वाचा पॉईंट म्हणजे स्टेप दॅट आय डिस्क्राईब हिअर ना, ज्या काही स्टेप मी सांगितल्या आहेत त्या नेसेसरी फक्त जपान करता आहेत असं काही नाही आहे. एक्सेप्ट जापनीज लँग्वेज, सेम स्टेप्स आर युजफुल फॉर ईच अँड एव्हरी कंट्रीज. यु नो, अमेरिकेला सुद्धा, युरोपला सुद्धा सेम स्टेप्स जात आहेत. राईट महेश? करेक्ट. त्या मॉडर्न कॉलेज बोला, काही प्रश्न आहे का? हा, तो मेडिकल एज्युकेशन. होय. ओके. ऍक्च्युली मेडिकल एज्युकेशन करता सुद्धा स्टेप सेम राहतील, बट अनफॉर्च्युनेटली आय डू नॉट हॅव लिंक्स नाव. मेडिकल फील्ड सोबत तर माझं जपानमध्ये काही लिंक नाही आहे. अमेरिकेला बऱ्याच लिंक आहेत आपल्या मेडिकल फील्डच्या. तुम्हाला मेडिकल फील्डमध्ये बराच आपण अमेरिकेत मिळू शकतो. जपानमध्ये पण मी जर कोणी इंटरेस्टेड असेल तर मला जर तुमचं डिटेल्स पाठवलं कि अगर आप मुझे भेज सकते हो आपके फील्ड के रिलेटेड कि आपको एग्जैक्टली किस फील्ड में जाना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे ईमेल करिए. तो मैं यहाँ पे लोकली यहाँ की यूनिवर्सिटीज और बाकी जो लिंक्स है, यहाँ के जो लोकल कॉन्टैक्ट है, वहाँ से मैं आपको इन्फॉर्मेशन मेडिकल फील्ड के रिलेटेड भी दे सकता हूँ. तो डेफिनेटली सेंड मी मोर इन्फॉर्मेशन, आपको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है वगैरह वगैरह. तो उसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के भेज सकता हूँ. कंटिन्यू सुशांत, नेक्स्ट वन. ठीक है. And Mahesh, if you get questions in chat, just keep it, copied separately. And Okay. at the end of this employment opportunities also, we can discuss on that. करेक्ट. एक प्रश्न आहे सुशांत यांच्याकडून की स्कोप फॉर MBA विचारत आहे मॉडर्न कॉलेजकडून. हाँ, ते फक्त मला it's same है. और even for modern college, MBA करता पण इथे डेफिनेटली करता येते. स्टेप सेम आहेत. जस्ट प्रिपेअर युअर सेल्फ, लिंक चेक करा, वेबसाईट चेक करा, आणि इफ जस्ट इन केस आपको अगर यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ से, मुझे भेजिए. आपने कौन सा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया है. एक्सपेंसिव है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. पता नहीं मुझे अमेरिका और जापान से कंपेयर करते हैं तो कितना एक्सपेंसिव रहेगा, बट आई बिलीव कि जापान का एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो MBA के लिए भी जैसे स्टेप मैंने आपको बताया है कि स्कॉलरशिप के एग्जाम आप दे सकते हो. उसमें अगर आप सक्सेसफुल होते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप को आप अपेयर करिए. नहीं होता है तो MBA जिस भी कॉलेज से आप करना चाहते हो उसके प्रोफेसर को आप कॉन्टैक्ट करिए, उनसे कम्युनिकेशन करिए, और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो मुझे बताइए. बाद में फिर आपका जो स्टेप्स रहेगा, जापान में कब आना है, कैसे आना है, यहाँ का इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए, वो सब भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ उस चीज़ में. तो डेफिनेटली आप MBA भी कर सकते हैं. BS, MS और PhD में MBA भी आपका MS कोर्स होता है, तो MBA आप डेफिनेटली कर सकते हैं. Hello, can you hear me, sir? Yes. Yeah, Right. Anup here, sir. अनु बोला. Yeah, सर मला सरांना विचारायचं होतं की जपानमध्ये डायरेक्टली जॉबचे काय चान्सेस आहेत, म्हणजे इथून समजा डायरेक्टली आपल्याला जॉबला अप्लाय करायचं असलं तर कशा प्रकारे करता येईल, आणि
त्यांची कशी काय हेल्प होऊ शकेल तिथे? ओके, मी त्याच्याकरता काय करतो आधी लेट मी मला एक्सप्लेन करू द्या की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कशा आहे ते हो सकता है जापान में, आपको कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जापान में। इसका एक्सप्लेनेशन करने के बाद में मैं आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में डायरेक्ट वहाँ पे रह के कैसे कर सकते हो मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। सर ठीक है, सो चलो अभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा आवाज डिस्टर्ब करो। सो फॉर एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू इमीडिएट अपॉर्चुनिटी ना, यहाँ पे जापान में इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है इसके बारे में पहले मैं बताऊंगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च एसोसिएट, ठीक है। अच्छा तो पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च एसोसिएट के लिए क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने स्टूडेंट्स बहुत कम के देखे नहीं है, बट बाकी के स्टूडेंट में देखता हूँ कि जो डॉक्टरेट ऑलरेडी है इंडिया से जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है, ये लोग यहाँ पे प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करके इमीडिएटली यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है रिसर्च एसोसिएट के लिए कि उन्हें इमीडिएटली बुला लेते हैं। तो रिसर्च एसोसिएट के लिए एलिजिबिलिटी है कि सबसे पहले आपको पीएचडी डिग्री ऑलरेडी आपके हैंड में होना चाहिए, या फिर आपको 1-2 महीने में मिलने वाली है ऐसा आपको कंफर्मेशन चाहिए। तो देन यू टॉक टू दिस प्रोफेसर्स हियर। ये पोजीशन जो है पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च एसोसिएट की इज डेफिनेटली लाइक एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ओनली, क्योंकि इसमें होता है आपको मंथली सैलरी मिलती है प्रोफेसर के फंड से। आपको मंथली सैलरी मिलने की वजह से आप यू कैन स्पेंड योर लाइफ ओवर हियर, यू कैन सर्वाइव हियर एंड डेफिनेटली अच्छा मिलता है। जो नॉर्मल फ्रेशर्स को मिलता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मिलता है यहाँ पे। आपको उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेप सेम होती है जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आपको कॉन्टैक्ट करना है, तो एक्सेप्ट स्कॉलरशिप जो भी स्टेप्स मैंने आपको पहले बताई है एजुकेशन के लिए, सेम स्टेप से आपको जाना है, उनसे कॉन्टैक्ट करना है, उनको एक्सप्लेन करना है एंड यू कैन शो इंटरेस्ट कि आपने ऑलरेडी पीएचडी की हुई है पर्टिकुलर इसमें। तो प्रोफेसर से कांटेक्ट करके आपको अगर उन्होंने अगर इंटरेस्ट दिखाया तो ही कैन कॉल यू एज अ रिसर्च एसोसिएट फॉर हिज रिसर्च कैंडिडेट। आपको उनके लैब में हेल्प करना पड़ेगा, रिसर्च में हेल्प करना पड़ेगा और आपको मंथली सैलरी भी यहाँ पे वो देंगे। इसमें 100% चांसेस है कि यू आर गोइंग टू गेट हायर्ड फॉर द रिसर्च एसोसिएट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज है उनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। तो इफ यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट एंड उनको जरूरत है तो ही विल डेफिनेटली कॉल, ठीक है। ओनली वन थिंग आई हैव हर्ड फ्रॉम सम कैंडिडेट की प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है रिसर्च एसोसिएट्स को। आपको बहुत ज़्यादा टाइम काम करना पड़ता है, मे बी 12 से 16 घंटे एक दिन में काम करना पड़ता है। बट ये भी एक्चुअली प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है। तो नेसेसरी नहीं कि सारे प्रोफेसर ऐसे ही होंगे एंड आपको इवन आपके स्किल्स पे भी डिपेंड करता है कि अगर कैंडिडेट बहुत ही पीएचडी किया है लेकिन उसका स्किल्स नहीं सुटेबल है रिसर्च में, तो फिर वो प्रोफेसर भी परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे भी केसेस हो सकती है। तो इट बोथ द साइड्स डिपेंड नो। तो उसमें कोई नाराजगी की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टिल ट्राई टू गेट द रिसर्च एसोसिएट पोस्ट, ठीक है। एक मिनिट हा. शिल्पा यांना घेते का तिकडे? शिल्पा ओके ठीक. Okay, next is opportunities for programming for engineers. इसमें है कि एक्चुअली हमें अभी एक प्रोजेक्ट है जापान में, प्रोस्पेक्ट है एक्चुअली, इट्स नॉट कंफर्म, बट हो सकता है कि मई महीने से मुझे एक ऑन साइट इंजीनियर लगेगा जापान में जो आईटी फील्ड से है, जिसे C#.net, ASP.NET या SQL डेटाबेस इंटीग्रेशन का स्किल जिसको है उसे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कौन सा इंजीनियर की। एडिशनली 2 प्रोग्रामर्स इंडिया में चाहिए सेम स्किल्स के, तो ऑनसाइट इंजीनियर यहाँ से रिक्वायरमेंट बेस पे वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट देगा ऑफशोर में। तो वहाँ पे 2 कैंडिडेट्स की जरूरत है। और
बेसिकली 2 इंजीनियर्स एट ऑफसाइड जो है, इंडिया के लिए जो इंजीनियर्स की जरूरत है वो कंफर्म्ड है। इवन दो जापान की अपॉर्चुनिटी नहीं भी होती है तो भी हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स है जो सैलरी बेस पे हम उनको प्रोजेक्ट अलाउट करेंगे एंड दे कैन वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। सैलरी थोड़ा सा हाई फाई नहीं रहेगा जो आप जितना है, बट वॉट एवर इज वी कैन पे एंड इफ कैंडिडेट वांट टू इंक्रीज हिज कैपेबिलिटी में भी कुछ स्टडी करना है, लर्न करना है, जापानीज का प्रोजेक्ट अगर लर्न करना है, मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट कैसे लर्न करना है और कुछ अर्निंग भी करना है, अगर ऐसे कैंडिडेट्स हैं तो उन्हें इमीडिएटली हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं 2 प्रोग्रामर्स को। एंड 1 मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर चाहिए जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है आईफोन एंड्रॉइड पे। ये भी परमानेंट पोजीशन है ऑफशोर में, इंडिया में, नागपुर में रहेगा। पुणे में भी सेटअप कर सकते हैं, मुंबई में भी कर सकते हैं, डिपेंड है अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो। बट नागपुर में वी ऑलरेडी आर फैसिलिटी नाउ, तो नागपुर में इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इमीडिएट अपॉर्चुनिटी है जिन्हें मतलब लर्न करना है, एक्सपीरियंस लेना है कुछ और सैलरी भी अर्न करना है, तो दे कैन प्रिपेयर। एंड जो भी इंडिया में रहेंगे उन्हें अगर उनकी स्किल डेवलप हो गई है तो हो सकता है हम उन्हें ऑनसाइट पे कभी भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार आपके पास स्किल्स है और जापानीज लैंग्वेज आपने स्टडी की है तो यू डेफिनेटली गेट द जॉब इन जापान, इट्स वेरी इजी ओवर। बट ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए मैंडेटरी है कि आपको जापानीज लैंग्वेज आना जरूरी है जापान के अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है। नाउ अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ये तो गारंटेड अपॉर्चुनिटीज है अभी जो बताया मैंने आपको। उसके अलावा जो फ्रेशर्स है जिन्हें जॉब नहीं है, जो प्रिपेयर कर सकते हैं, करना है, जिन्हें आने के लिए, उनके लिए स्टेप्स मैं बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी है कि आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, कोई भी हो सकता है, बीए बीकॉम भी हो सकता है, बीएससी भी, एमएससी वगैरह सब चलेगा, बीए भी चलेगा। यू शुड बी ग्रेजुएटेड इन, यू शुड हैव ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट इन योर हैंड and you should be ready to learn Japanese language. You should have Japanese language skills. But gap should not be more than 2 years. Okay. जिन्हें गैप है 2 साल की, 3 साल की, what we can do is कि थोड़ा सा उसका स्टडी करके, टेक्नोलॉजी का स्टडी करके थोड़ा सा स्किल अगर डेवलप करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ऑफशोर में हमारे पास फैसिलिटी है, तो अगर हम लोग तो अभी दो से 3 कैंडिडेट को पेमेंट कर सकते हैं, बट उसके अलावा अगर जिन्हें स्टडी करना है सिर्फ, तो वी कैन गिव देम द अपॉर्चुनिटी। सैलरी तो नहीं दे सकते हैं, बट वहाँ पे हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे आप प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, आपकी स्किल ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स को अगर गैप भी अगर है तो हमारे एजुकेशन से अगर उन्होंने स्किल डेवलप किए तो वी कैन शो देम दैट दे हैव सम एक्सपीरियंस एंड वी कैन क्रिएट सम सर्टिफिकेट इन इंडिया। और जापान के लिए भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं और उन कैंडिडेट को ऑफशोर में भी, इंडिया में भी जॉब दे सकते हैं जो ऐसे स्किल्स डेवलप करेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए एक सजेशन है कि डेफिनेटली डू नॉट गो फॉर स्टेइंग आइडल फॉर मिनिमम 4 मंथ्स और 6 मंथ्स, 6 मंथ्स तक के अगर आप गैप दे रहे हो तो इमीडिएटली यू थिंक अबाउट स्टार्टिंग समथिंग, डूइंग समथिंग, बहुत से कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं कि जो मास्टर्स करना है इसलिए प्रिपेयर करते हैं साल भर, बट कुछ कैंडिडेट सक्सेस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो उन्हें गैप आ जाती है। तो आई वुड से कि प्रिपरेशन तुम लोग हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक की रखिए, उसके ऊपर ना रखिए। और उसके बाद में अगर आप सक्सेस नहीं मिलता है तो डेफिनेटली ट्राई टू डू समथिंग, स्टार्ट इमीडिएटली सम जॉब, डोंट वरी अबाउट सैलरी, जस्ट गेट मिनिमम सैलरी व्हाट एवर दे कैन पे, बट यू शुड ट्राई टू गेन सम एक्सपीरियंस। एक बार का आपका एक्सपीरियंस आना चालू हो गया, 1-2 साल का भी, तो गारंटी है कि आपको कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो आप डेफिनेटली ट्राई करिए कि ज़्यादा टाइम आप आइडल ना रहें। नाउ आई विल टेल यू द स्टेप्स फॉर ऑन साइट अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ऑन साइट के लिए, जापान के लिए अपॉर्चुनिटी अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली यू हैव टू फर्स्ट थिंग डू इज गो फॉर जापानीज लैंग्वेज ट्रेनिंग कोर्सेज एनीवेयर। ओके, और प्रिपरेशन करना आपको JLPT 2 लेवल का। JLPT 2 इज स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इट इज रन बाय जापानीज गवर्नमेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में भी ये टेस्ट होती है, बॉम्बे में, पुणे में होती है टेस्ट, दिल्ली में होती है। तो सबसे पहले आप कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी चालू करिए, स्टडी करके ट्राई करिए JLPT 2 लेवल का। बट JLPT 2 लेवल मैंडेटरी नहीं है, आप प्रिपरेशन वो लेवल का करिए। आपको एक सर्टिफिकेट नहीं भी मिलता है JLPT 2 का, बट यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ JLPT 3 का सर्टिफिकेट आपको हैंड में है
लेवल ऐसा होता है, 5 ये लोवेस्ट लेवल है, 4 उसके नीचे है, 3 उसके नीचे है, 2 इज द टफेस्ट लेवल एंड देन 1 इज द टॉप मोस्ट लेवल। ओके, तो ट्राई करिए मैक्सिमम 1 ईयर में आप प्रोफिशिएंसी ला सकते हैं। जेएलपीटी 3 का सर्टिफिकेट आपके हैंड में है और जेएलपीटी 2 का आपने स्टडी किया है। दिस इज मैंडेटरी, देयर इज नो अदर ऑप्शन अदर देन दिस। ओके, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं करना है तो आपको इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करिए, टीसीएस जैसे, इंफोसिस जैसे वगैरह, या जिनका ऑफिस है जापान में, छोटी मोटी कंपनी भी होगी ये, जो भी है, उन्हें ज्वाइन करिए और उन्हें इंटरेस्ट दिखाइए कि आपको फॉरेन में जाना है, जापान में वगैरह। लेकिन आपको फिर भी वो लोग अपॉर्चुनिटी तभी देंगे कि आपको थोड़ा सा लैंग्वेज आता है, आपकी स्किल से, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जेएलपीटी का प्रिपरेशन करते करते आप ये कर सकते हैं कि एडिशनल कोर्सेज, जैसे कि खाली रहने के बजाय आप क्या कर सकते हो कि प्रोग्रामिंग, आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर आप आईटी के इंजीनियर्स हो तो आप आईटी की फील्ड में आप एक, जैसे मैंने बोला है कि नागपुर में हम लोग आपको प्रोजेक्ट दे सकते हैं, तो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे आप काम करिए। ऐसा नहीं कि जब जस्ट बुक लेके आप कोर्सेज कर रहे हो उससे नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। जैसे सागर कब से मुंबई में है, ही इज वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स अपने एआई की वेबसाइट के लिए बोलो या गाइडेंस सेंटर के लिए। तो इस तरह के आप प्रोजेक्ट करते हो, हमारे पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, मैं आपको प्रोजेक्ट दे सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट है मेरे पास, ऐसे भी प्रोजेक्ट है कि जो आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने से हो सकता है कि हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है आईटी सॉफ्टवेयर में, वो भी प्रोजेक्ट मैं आपको दे सकता हूँ, जिससे फ्यूचर में अगर हम डेवलप कर सके तो हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा एक स्टेप मिल सकता है। तो वो भी प्रोजेक्ट है मेरे पास में, आपको दे सकता हूँ। आप इंटरेस्ट दिखाइए अगर करना हो तो। एम्बेडेड के इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अगर कोई कैंडिडेट है, एसएपी के कैंडिडेट्स हैं, कैट कोर्सेज है मैकेनिकल के, ये सारे आप वहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो साथ में स्किल बढ़ाने के लिए। एमबीए कर सकते हो, बीए बीकॉम के लोग एमबीए के लिए भी जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है यार, आप अपना खुद का इंडियन रेस्टोरेंट भी ओपन कर सकते हो जापान में, अगर आपका होटल मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है। उसके लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे किया जा सकता है ना। कोई रिक्रूटिंग एजेंट से यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो वो लोग उसमें जा सकते हैं, एचआर के लोग है ना, रिक्रूटमेंट एजेंट्स में जा सकते हैं। या इंडिया की जो रिक्रूटिंग कंपनीज है वहाँ पे आप छोटा मोटा एक्सपीरियंस लीजिए 1-2 साल का, उससे हो सकता है कि अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं जापान में कि अपना जापानीज लैंग्वेज और थोड़ा सा एक्सपीरियंस की आपको यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। सेल्स मार्केटिंग में आप कर सकते हो कुछ, तो ये सारी चीज थोड़ी बहुत थोड़ा जरूरी है। बहुत सारा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, 5-10 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है। 1-2 years इज ऑल्सो गुड इनफ एंड सम कोर्सेज इफ कैन डू दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। जब आप जेएलपीटी प्रिपरेशन कर रहे हो और कुछ टेक्निकल स्किल्स प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप जापान के लिए ट्राई कर रहे हो तो कीप इन कॉन्टैक्ट विथ मी और आई एम जापान टीम, एनीवन हियर, and we will help you to correct your mistakes and grow your capability to more high level with respect to requirement in Japan. Uh, ये ये सारे स्टेप्स है आपको प्रिपेयर करने की। अगर आपने ये प्रिपरेशन कर लिया तो देन फाइनलाइज करो कि आपको जापान विजिट करना है। तो जापान विजिट जो है आपको नेसेसरी नहीं है कि जापान कंफर्म, सॉरी, जॉब कंफर्म करने के बाद ही जापान में आना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका इतना प्रिपरेशन हो जाता है तो यू कैन स्टिल विजिट जापान। उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे आपका वीज़ा प्रोसेस करने के लिए। एडिशनली आपको यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए हम लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। वीज़ा प्रोसेस हम लोग करके देंगे, अकोमोडेशन के लिए आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे। डेली सर्वाइव करने के लिए भी आपको हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड है कैंडिडेट कौन है उसका, केस टू केस बेसिस पे। अगर इकोनॉमिकली साउंड है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स आपको अकोमोडेशन का हाई फाई एक्सपेंसिव जो है वो वीज़ा प्रोसेस, इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डेली सर्वाइवल के लिए अगर थोड़ा सा आप लोग जो फाइनेंशियली गुड ओके है, एक्सपेंसेस कर सकते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा एक्सपेंस कर सकते हैं, तो उन्होंने हेल्प करना पड़ेगा। हम लोग आपको यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। हाउ टू फाइंड जॉब आपको हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज आपको इम्प्रूव करा देंगे जापान में, जो भी हो सकता है। और वीज़ा आपको 3 महीने का मिनिमम मिल सकता है और उसको हम एक्सटेंड करा के एक साल तक ले जा सकते हैं। हो सकता है हम आपको डायरेक्टली वर्किंग वीज़ा पे भी लेके आ सके, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो, जिसका आपको 1 साल का मैक्सिमम वीज़ा रहेगा। तो उस केस में जॉब वीज़ा तो आपको वर्किंग वीज़ा मिलेगा, लेकिन फिर भी आने के बाद में वो वीज़ा बेस्ड ऑन रिक्रूटिंग एजेंट रहेगा, कंसल्टेंट कंपनी रहेगी,
जो आपको प्लेसमेंट देगी यहाँ पे। तो आने के बाद में आपको प्लेसमेंट सर्च करना पड़ेगा, जो जिसके लिए हम भी हेल्प करेंगे और वो जो कंपनी जो वीज़ा बना के देगी वो भी हेल्प करेगी। ठीक है। तो सबसे पहले आप डेट फाइनलाइज करिए कि कब जापान में आना है। आपका टिकट में भी आपको बेयर करना पड़ेगा, और वी मे हैव टू स्पीक कि हम कोई सपोर्ट कर सकता है क्या, EMI वगैरह वगैरह केस टू केस बेसिस पे रहेगी। जो इकोनॉमिकली बहुत ही वीक है तो उन्हें हम टिकट के लिए भी हेल्प कर सकते हैं जापान में आने के लिए। जो 2 इंजीनियर्स हम लेके आए थे उन्हें हम फेयर का हेल्प किए थे आने के लिए भी। तो वी कैन थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है। तो ये स्टेप्स अगर आप करते हो तो आपको जापान में पूरा सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से। और ऑब्जेक्टिव इसकी हमारे कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को ओवरसीज जॉब मिलना चाहिए। दे शुड बिकम फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। एंड वंस यू आर गेटिंग सक्सेस देन यू कैन कंटिन्यू योर लाइफ इन जापान। ठीक है। बट एक हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा कि आप रेगुलर कंट्रीब्यूशन करोगे आई जापान को, और मिनिमम मैंडेटरी रिटर्न्स आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा जॉब मिलने के बाद में। हो सकता है 1 लाख रुपीज़ और 1.5 लाख रुपीज़ और 50,000 रुपीज़ जो भी है। आपको जॉब करते समय जब भी आपका सेविंग्स होगा आपको एक मिनिमम मैंडेटरी रिटर्न्स आपको एन जापान को देना पड़ेगा, जिससे कि अब हम लोग मोर स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स को हम लोग यहाँ पे लेके आ सकें। दैट मीन द ओनली एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू गाइस। ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। And before we go to questions, just wanted to give you one hint on life in Japan। और एजुकेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप आना चाहते हो तो आपने क्या माइंड में रखना चाहिए, वो थोड़ा सा मुझे आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले कंसिडर करना है कि आपका एज क्या है। ठीक है। और आपको कितने साल तक आपको जापान में बाहर आपको काम करना है। क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है सबसे पहले कि आपके किड्स जो भी रहेंगे, सबसे पहले आपको उनके बारे में सोचना है कि आपको उनको एजुकेशन कैसे देना है। जापान में एक्चुअली एजुकेशन अच्छा है इन जापानीज लैंग्वेज ओनली, पर यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स भी है इंग्लिश एजुकेशन के लिए। नॉट लाइक अमेरिका। यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स जो है इंग्लिश अमेरिका जैसी भले होगी, लेकिन अमेरिका में क्या है हर जगह पे आपको इंग्लिश स्कूल मिलेगी। जापान में आपको ऐसा नहीं। इंटरनेशनल स्कूल बहुत कम है। फुकुओका में जैसे मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 इंग्लिश स्कूल्स है। टोक्यो में बहुत सारी है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आपको सोचना है आते समय कि आपको सिर्फ स्टडी करके वापस जाना है कि लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहना है। उसके हिसाब से आपको अपनी एज भी देखना है, आपके किड्स कब स्कूल स्टार्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और आपको ये एक्सपेंसेस ध्यान में रखना है। तो अराउंड ₹12 लाख यहाँ पे लगता है इंग्लिश एजुकेशन लेने के लिए, जिसके लिए आपकी सैलरी होनी चाहिए 9 मिलियन एम। मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 करिए तो उसके हिसाब से आपको उसका उतना आपको एनुअल सैलरी मिलना चाहिए। तो ये सब सोच के आपको डिसाइड करना है कि जाना है कि नहीं जाना है। कुछ लोग मैंने देखा है कि अपने बच्चों को इंडिया में रखते हैं और वो लोग यहाँ पे काम करके अर्निंग करते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, बट इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि यू शुड नॉट गो फॉर दैट, यू शुड अवॉइड दैट। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा माइंड में रख के डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू इज कि शॉर्ट टर्म के लिए स्टडीज करने के लिए आ सकते हो और चले जा सकते हो वापस, रिसर्च करके वापस जा सकते हो। या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपका जैसे भी 3-4 साल 5 साल ऐसा कर सकते हो, आज ऐसे काम करके वापस जा सकते हो। और वन मोर मेथड इज कि अगर इंडिया की कंपनी में आप जॉब करते हो और अगर जापानीज लैंग्वेज करके उन्होंने अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी है, तो वन गुड थिंग इज कि वो कंपनी पूरा हेल्थ एजुकेशन का खर्चा आपको बेयर करती है आपके बच्चे के लिए। तो दैट इज ऑल्सो अनदर गुड अपॉर्चुनिटी कि आप इंडिया की कंपनी से जॉब लीजिए इंडिया में और उनसे ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी जापान के लिए लीजिए, तो उससे आपका खर्चा भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। वी कैन गो फॉर द क्वेश्चन ऑफ नाउ। Okay guys, let's go for the questions. Anything? Yes, there is one question from Ranjit. PhD, yes, 3 साल की है और 3 साल में बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, एक्चुअली मेरा केस जो है मैं वर्किंग एम्प्लॉय था, तो मेरा पब्लिक से मैनेज नहीं हो पाया।
क्योंकि टाइम में नहीं दे सकता था। बट 3 की जगह मैंने 4 साल में तो भी किया है। आप जनरली देखोगे अमेरिका में भी 5 साल लगते हैं, बट फिर भी मैं वर्किंग एम्प्लॉय होने के बाद भी मैं 4 साल में कर सका हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। बट एक थिंग आपको वन थिंग आपको माइंड में रखना है कि पीएचडी के कोर्सेज में अमेरिका में तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन जापान में जनरली आपको प्रोफेसर भले आपका गाइड हो, आपको बहुत सारा ये मटेरियल देगा, आपको गाइडलाइंस देगा कि आपको कौन सी थियरी यूज करना है, क्या करना है, कौन सा बुक यूज करना है। लेकिन अगर उसे पता भी होगा आंसर तो भी आपको आंसर नहीं बताएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली व्हाट दे थिंक इज कि आपको पूरा एक्सप्लोर करके डीप में जाके आपको आंसर खुद ढूंढना है। तो ही विल नेवर गिव यू एनी आंसर, ओके, इवन दो ही नो। तो आपको बहुत फाइट करना है इसके लिए, रिसर्च करने के लिए, या एमएस में भी आप जाते हो, कोई भी आपको स्टडीज करना है तो डायरेक्ट आंसर तो आपको कोई नहीं देगा। आपको यहाँ पे सारे प्रोफेसर खुद आपको पूरा हेल्प करेंगे कि मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, हिंट आपको देंगे, बट दे विल नेवर गिव यू एनी आंसर्स, ओके, डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिलेंगे बिल्कुल। तो यू हैव टू फाइट फॉर दैट, ठीक है। तो पीएचडी डेफिनेटली आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हो। नहीं कुछ तो आपको एक्सटेंशन 3 साल का मिलेगा या 5 साल का मिलेगा, विद इन दैट टाइम यू कैन आल्सो डू दैट, ठीक है। और आप ग्रेजुएशन आपको सर्टिफाइड ग्रेजुएशन आपको मिल जाता है 3 साल में। देयर आर डिफरेंट थिंग्स, यू कैन टेक ब्रेक आल्सो। अगर आप 3 साल में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आपको 1 साल के पहले आपको नोटिस देते हो ब्रेक के, या 6 महीने पहले भी देते हो कि मुझे ब्रेक लेना है 3 साल का। तो 3 साल का ब्रेक आपको ऑफिशियली मिलकर आप 3 साल के अंदर में आप रिसर्च कंप्लीट कर सकते हो। एमबीए सिस्टम्स इन जापान, जापान में एमबीए वालों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है। एचआर वाले होंगे तो यहाँ पे एचआर में फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी जो है, जो जैसे यूएस बेस्ड कंपनीज है या इंडिया बेस्ड कंपनीज है, इनके बहुत सारे यहाँ पे ऑफिसेस है। तो वहाँ पे आपको एचआर में जॉब मिल सकता है, या फिर आपकी जो भी फील्ड होगी एमबीए की, उसमें आपको डेफिनेटली यहाँ पे जॉब मिलेगा। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, जापान के कोई भी जॉब के लिए जापानीज लैंग्वेज मैंडेटरी है, यू हैव टू स्टडी दैट, ओके। And I can also help you writing and reading also. When you study that, we can have email communication in Japanese language. I will write you in emails in Japanese. You have to read that. I will tell you the techniques how to understand Japanese language, even though you don't know the Japanese language. You cannot read. I can tell you techniques, online. तो ऑनलाइन कुछ टूल्स है जिसमें आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर सकते हो, और यू कैन इवन राइट जापानीज लैंग्वेज ईमेल to me. I can check that, correct that, if there are any mistake. तो इससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी। तो डेफिनेटली आपको कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बट जापानीज लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। Women conference today in Bangalore. They will join us to introduce their agenda. What time it is, Ranjit?